Okay, so far we had studied before three structures, if you remember. There was word plus adverb, if you remember, word structure. And then after word structure, we studied their word structure. This one already we have studied that. Then adjective plus noun. And after this, we studied special verb structure, if you remember, Claire. Experience plus adjective plus noun, this structure. We have already studied these three structures. Now, the fourth structure we're going to talk here, that's about reaching or Claire, peak or bottom. So if you want to talk about if there would be a case in any of the graphs, Claire, that where any of the category, it may hit peak or bottom. So for that purpose, you can use uh, simply what I prefer you so use either hit a peak off or hit a low off. In fact, we use for both present and past hit because first, second, third form, all three forms are same for hit, hit, hit. Clear? So you can use, first of all, subject. I mean, what? We can use what? In this case, like for example, the rate. Clear? Or for example, the price of petrol or the sales. So what? So after what you can use what? We can use hit a peak of. Hit a peak of. And then you can put what? You can put number after that, the value. Number means value. So in case if there is any graph and it talks about like in this type of situation, let me draw it here for you. Suppose this is a graph and it goes up. Now, can you see this place? It clear hits peak off. So we can say the consumption of pizza clear hit a peak off, hit a peak off. And after that, you can put the value, the number here. And what was the figure? Or for example, there is another graph and it comes down, clear down. So can you see this place? This place is the hit a low off. So we can say hit a low of. Over here, this is the peak point and this is the lowest point. So you can even like use hit a low of or hit a peak of. And for this one, for hitting a peak, you can also say reached, like the way the figure reached 80% in 2020. But I prefer, first of all, this must be your first priority, clear? These two. But you can even say peak. Peak, second form is peaked. You can say sales peaked. So it means the same. Sales peaked, clear, or you can say sales hit a peak of. So it depends on you. But with peak, we use at. But here, peak of, hit a peak of, not hit a peak at. So we do not say hit a peak at, we say hit a peak of. But in this case, we say peaked at because peak, we do have second form. So you can use second form peaked. Clear? Ed, peaked, and after that you can use preposition at. And the opposite one for the low, you can even use bottomed out at, bottomed out at. So first of all, you can say first form, the second form is bottomed, bottomed out, and then you can use preposition at, bottomed out at. So we can say the profits bottomed out at, clear, 2 million. So for talking about clear, in such case, either if you want to talk about the peak, clear, the high point, the highest or the lowest point. So in that case, we can use these formula. You should know about these formulas, how to use them. This is another structure. After this, uh, there is a structure we can use here, quite common type of structure, and that is respectively. So the word respectively we can introduce, and it's very common in your IELTS writing task one, especially for line graph, bar graph, table, and pie charts, for these four charts, respectively. We use respectively to match figures with categories in the same order. For example, let me give an example. Uh, suppose Miss Sadia, she achieved, clear, she scored 8 band. Clear, band, she scored 8 band, scored band 8, clear, and her IELTS actual exam. And clear, for example, Miss Laila, she clear, she secured band 7
So now, there are two people that what I have written here. One is Miss Laila, and another one is that's of Miss Sadia. Instead of writing like in this way, what we can do, we can simply change it. How we can write, for example, Miss Sadia and Laila. Clear? We can write in one sentence to be a bit more concise. This is more concise way of writing, clear? That we want to add two things clear in one sentence, two ideas in one sentence. We can say Sadia and Laila, for example, scored band 8 and 7. Clear? Yeah, and then you can put comma, respectively, and then you can put full stop. Now, what does it mean? It means that the word we have like now Messiah is first. So the value for Messiah was what? It was 8. So that's why if the value for the first name, clear, for the first name, for the first subject, it has to be followed first. And then Miss Laila, the second one, we have written here. We can't write like 7 here and then 8 in this place because it doesn't show the order. According to the order, band 8, because I have written Miss Sadia's name first and her score is 8. And then I have written Miss Laila's name and that was score 7. So we need to follow, clear? Because Miss Sadia's score was 8, so that's why the first name, first value. Second name, second value. And at the end, we need to put comma. After this, there should be comma. And after comma, there should be space, clear? And never use comma because yesterday when I was checking your work, you people give space, clear? After a word, you give space and then you put comma. And then there's no comma, like you people write in this way. That's totally wrong. There's no space after comma. Then after comma, you have to give space in this form. So that's why if there are 2 or 3 values, even like you can put 3 values, I can put like comma, and then I may put here comma and clear. And for example, we can write Miss Amna and her name. So that's the third name. So what we can do, we can write the third value as well. Then we can put comma here as well, comma, and this is the number one, figure number, value number one, and then we can end. For example, her score is 6, and then we can say respectively. So we mentioned 3 values in one sentence. It's more concise way of writing it down. Let's take some of the practical examples, what I have mentioned here down. The first one, for example, what we have that is male. So male, get the value for male and then female students. There are 2 categories. Accounted, we have mentioned accounted for. So the first value, 55 goes for male and then 45 for this one, and then put comma and then we can write respectively. So 2 groups are matched with 2 figures in clear order. This is a bit much more clear structure to write down about any of the structure. And then, for example, pie chart, there are different categories like housing, food, transport, represented 40%. So 40% goes for what? For housing, and then 30% for the food and 15% for the transport. And same is the case, Canada and USA recorded. So Canada value is this, and then USA value is this one. Same is the case like 2 numbers, 2020 and 2010 and 2020. The rates stood 12% for 2010 and then 18% for 2020. Clear? So make sure that you people understand how to write it down. This is the easiest way, clear? The easiest way to write down about any of the 3 or 2 or 3 values and you don't have enough time to complete it. So what you can do is simply you can write respectively and then you can cover it up because most of the time words you need to write down. So that's definitely you do understand that is how many words you're required to write. The words you need to write, they are I think 150 words. So then if you keep writing that in detail, so you may use more words and more words, maybe more mistakes, and more mistakes means what? Less band. So make sure you're quite concise and definitely will get high band than that. Is this structure clear to everyone? Sir, Yes, please. I have question. Sir, ये जो 7 और या 8
स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, जी एडजेक्टिव्स, नाउन, तो ये क्या डिफरेंट जो है ग्राफ्स है, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, ये सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हर एक जिस तरह रिस्पेक्टिवली ने हम रिस्पेक्टिवली जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने पढ़ा कि बार चार्ट, पाई चार्ट इन चारों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी दो के लिए नहीं ना? जी। तो जो अबव हमने पढ़े हैं स्ट्रक्चर्स, तो क्या उसमें भी सिलेक्शन होगी, या They're फिर for जो all. जिसके ऊपर These हमारी structures कमांड are हो? for the all. These structure are for four types of graphs. The same four ओके types सर। of graphs. The structures we ओके study, we सर। can use for bar chart, all structures, pie chart, table, and line. For all these four जिसके types of ऊपर भी graphs. हमारी कमांड हो, इसको हम पिक करके यूज़ कर सकते हैं बार Exactly. चार्ट में, पाई Yes, चार्ट में। yes, yes. Any of the structure you like, you can use them quite easily. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्ड्स मेरे अल्फाज ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा हो रहे हैं और मुझे मतलब लिखना तो जरूरी है कि मैंने लिखना है, तो फिर मैं रिस्पेक्टिवली का सहारा ले सकता हूँ ना, कि मतलब इतना तीन चार जुमलों की जगह मैंने एक जुमला लिख दिया और मैंने अपना काम भी कर दिया। वो कहता है कि एक तीर से तीन शिकार। ओके सर। समझ रहे हो? सो एक तीर से दो ओके शिकार सर। या तीन शिकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमने रिस्पेक्टिवली का सहारा लेना है। सर, जिस तरह टास्क 2 में हम एडिशनली का सहारा लें, तो इस तरह टास्क 1 में हम रिस्पेक्टिवली का सहारा लेंगे अपने वर्ड्स को फुल कंप्लीट करने के लिए। या यही यू इस यू तरह कैन है। जस्ट यूज रिस्पेक्टिवली एंड बहुत सारे मतलब ये एक मजमूए में आपने बस खत्म कर दिए। एक ही जुमले में तीन चार चीजें आपने मतलब कवर अप कर दी। ठीक है जी। इज इज क्लियर? अच्छा। यस सर। अब हमने क्या करना है, दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स योर ग्राफ्स एंड लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल। आज हमने लाइन ग्राफ के जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो हमने पढ़ना है, ठीक है। paragraph. या लेकिन before I come towards that of your the explanation part, let me ask you, हम आपकी किताब में वोकैबलरी है, ठीक है, यू विल वी यूज दैट वोकैबलरी एंड यू शुड नो अबाउट दैट। वो वोकैबलरी है हमारे पास। एक मिनट के मैं सबसे पहले उस पे आ जाओ, जो हमारा पार्ट है इसमें लाइन ग्राफ का। सो लेट मी चेक व्हिच पेज नंबर। अच्छा, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो इसकी जो वोकैबलरी है इस किताब में आप लोगों ने ये सीखना है, मस्ट, बिकॉज दिस थर्टी वोकैबलरी इज कंपल्सरी फॉर यू। यस प्लीज। 13 नंबर पेज। या इट्स पेज नंबर 30, राइट? पेज नंबर 30। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द वोकैबलरी फॉर पेज नंबर 30। अब मेरी बात सुने, हम हमारे पास ट्रेंड्स है लाइन ग्राफ में, क्या होता है, क्योंकि आज हमने लाइन ग्राफ पढ़ना है। हमने पढ़ा था, लेकिन लाइन ग्राफ में हमारे पास व्हाट वी नीड क्लियर वोकैबलरी फॉर अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट। हमारे पास थ्री तरह के मूवमेंट्स होते हैं ना, अपवर्ड मूवमेंट। Yes. So for upward movement, we can use these vocabulary words. We cannot repeat the same word again and again. Do you understand? क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब से। और तो वर्ब के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें हमें वर्ब की जरूरत जो है, दैट इज व्हाट वी नीड Edward. एन एडवर्ब। एक्सेलेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि न्यूट्रल। एंड व्हाट आई मीन बाय न्यूट्रल, न्यूट्रल से मेरा ये मतलब है कि हर जगह पे आप राइज लिख सकती है, ठीक है। मतलब राइज को चाहे इंक्रीज स्लो है, इंक्रीज तेज है, इंक्रीज जैसे मॉडरेट है, तो ये न्यूट्रल है, हर जगह पे आप लिख सकते हैं। जैसे इंक्रीज है, राइज है, ग्रो है। लेकिन जो क्लाइम है ना, क्लाइम, क्लाइम हमने कब लिखना है? हमने सिर्फ मॉडरेट की लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। अब ये इंक्रीज ऐसा है, तो इसे मैं क्लाइम कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? क्लाइम। लेकिन इस ग्रोथ को मैं क्लाइम नहीं कह सकता। इसे मैं राइज तो कह सकता हूँ, और राइज इसे भी कह सकता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है यह है कि ये तीनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो मॉडरेट है, तो मॉडरेट के लिए क्लाइम इस्तेमाल होता है, कि इसके लिए मतलब, और इसके लिए पर हम नहीं यूज करते। हम क्लाइम तो जिस चीज पे आप क्लाइम कर सकते हैं, राइट? गो अप है, लेकिन कोशिश करें कि गो अप ना इस्तेमाल करें, इट्स अ बिट इनफॉर्मल। अगर आपके पास कोई और वर्ड ना हो तो फिर देन यू कैन यूज दैट। लेकिन हमारे पास मतलब, अगर स्ट्रांग जो है, स्ट्रांग मैंने यहाँ पे लिखे, तो स्ट्रांग का मतलब क्या है? अगर आपके पास ऐसे सीन है
कि आपने वोकैबलरी लिखना है अपवर्ड, अब ये है, तो इसे तो मैं क्लाइंब नहीं कह सकता। सो व्हाट वी कैन से शूट अप, वी कैन से सर्ज, वी कैन से सोर, क्लियर, वी कैन से जंप, वी कैन से रॉकेटेड। तो इन अल्फाज के लिए कि मतलब एक शार्प इंक्रीज हो, बिल्कुल तेजी से ऐसा आए हो, तो आप लिख सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू। अब यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 साल में फॉर एग्जांपल 2000 से लेकर 2002 तक, तो यहाँ पे इसका जो इंक्रीज है कैसे है। सो द प्राइस ऑफ पेट्रोल सोर्ड, मैं क्या लिखूंगा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल सोर्ड, क्लियर। फिर यहाँ पे जो इंक्रीज आ रहा है, स्लो इंक्रीज आया ना, फिर ये थोड़ा कम होता रहा है, ऐसे चला गया, लेकिन यहाँ पे तो काफी तेजी से मतलब गए, कैन यू सी दिस पार्ट। लेकिन Yes, फिर इसके बाद जो इंक्रीज आ रहा है ये कम कम है। तो जहां पे आप लोग को नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो इंक्रीज आया काफी तेज आया, देन यू कैन यू शूट अप, सर्ज, सोर, ये स्ट्रांग इंक्रीज के लिए अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेक श्योर आपको मालूम हो कि स्ट्रांग इंक्रीज के लिए कौन कौन से वर्ब्स हमने लिखने हैं। sir. जी जी। Sir, adverb is also change the meaning of verb. यस। Like for example, you said that we cannot use the moderate increasement. So या we can use for climb, yeah. But या if, for example, if I use it rise gradually, so gradually it means that they are climbing. अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप लोग एडवर्ब का काम क्या है कि वर्ब के इंटेंसिटी को कंट्रोल रखना। Yeah. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स है, वी हैव गॉट सम वर्ब्स कि उसे हम कहते हैं परफेक्ट वर्ब्स। परफेक्ट Okay. वर्ब का मतलब ये है कि उस पे आप लोगों को एडवर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। आपको Okay. मतलब यू डोंट नीड टू राइट डाउन, जैसे मतलब सर्ज है, सर्ज, तो सर्ज मींस बहुत बड़ा इंक्रीज या स्काई रॉकेटेड। तो रॉकेटेड के लिए Yeah. हमें किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वी अब यहाँ पे देखिए इसके मतलब वी डोंट नीड टू राइट डाउन सोर्ड। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सर्च स्ट्रांग है, लेकिन सोर जो है वेरी स्ट्रांग है, कैन यू सी। Yeah. अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे अगर मैंने सर्ज लिखा है, सर्ज लिखा है ना, तो इसके साथ मैंने एडवर्ब का इस्तेमाल कर दिया कि नहीं। Yes, sir. लेकिन अब सोर्ट को देखे, सोर्ट के साथ मैंने किसी एडवर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है नहीं। क्यों? No. क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि गुड, तो गुड को कैसे थे कि वेरी गुड लिख सकते हैं ना। Yes. लेकिन क्या Excellent. एक्सेलेंट को हम कैसे थे कि वेरी एक्सेलेंट। No. नो। क्या मैं परफेक्ट को वेरी परफेक्ट कह सकता हूं? नो। क्लियर। हम कहते हैं कि Okay. दैट्स अ सॉलिड, सॉलिड आइडिया, सॉलिड आइडिया। तो सॉलिड आइडिया कैन आई से वेरी सॉलिड, वेरी सॉलिड, सॉलिड तो ऑलरेडी परफेक्ट है। तो इसमें हमारे पास जो वेरी वेरी लिखते हैं ना, वेरी वेरी स्ट्रांग, तो इनके साथ नहीं लिखना। इनके साथ आप लोगों ने फिर एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यह खुद बजाते खुद काफी है, क्योंकि इसका मतलब ही ये बड़ा, बहुत बड़ा चेंज आने वाला चीज, कि बहुत बड़ा मतलब इंक्रीज आया इसमें। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे Okay. पास देन वी कैन हैव डाउनवर्ड वर्ड्स। सो फॉर द डाउनवर्ड वर्ड्स यू हैव फॉल, इसी में मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉल, न्यूट्रल, डिक्लाइन, ड्रॉप, क्लियर, गो डाउन। So make sure you understand that. And then you people can study about stability. तो stability के लिए हमने क्या लिखना है, remain stable, stay the same, leveled off, play to, clear। अब जैसे play to है हमारे पास, तो ये काफी strong word है, तो कोशिश करें कि play to को इस्तेमाल, play to का मतलब है बिल्कुल बराबर सीधा होना। ठीक है, बिल्कुल सीधा मतलब एक लेवल पे आना। ठीक है, सो यू कैन से प्ले टू, सेकंड फॉर्म आप लोग को आना चाहिए। ये कुछ अल्फाज ऐसे है ना कि ये इस्तेमाल क्या करे, ये इस्तेमाल करें तो इससे क्या फायदा है कि ये अच्छे हो, ये 8 और 9 बैंड के वोकैबुलरी वर्ड्स है। तो कोशिश करें कि आप अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करें, जैसे लेवल्ड ऑफ लिखे या प्ले टू लिख दिया करें। Okay. देन वी हैव फ्लक्चुएशंस, कभी कभार हमारे पास फ्लक्चुएशंस भी आते हैं। तो फ्लक्चुएशंस के लिए सबसे पहले आप लोग के पास जो अच्छा वर्ड है वो कौन सा है, फ्लक्चुएटेड। तो यूज किया है, क्योंकि आप जगह फ्लक्चुएशन नहीं होता तो एक बार मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यूज, ट्राई टू यूज फ्लक्चुएटेड, वेरिएशन ना लेके ये कोशिश करें कि ये ना आपके पास जो अच्छा वर्ड है वो दैट इज फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएशन या फ्लक्चुएटेड। देन वी कम विद द नाउन फॉर्म, वर्ब एंड नाउन, एंड आई हैव टोल्ड यू, क्लियर, आपको तो पता है कि मतलब, अब देखिए यहाँ पे जैसे देयर वाज, तो देयर वाज के पास साथ हमने क्या लिख दिया, वी हैव यूज व्हाट, एडजेक्टिव प्लस Uh, नाउन। और जैसे यहाँ पे शोज और शोड, तो स्पेशल वर्ब हुआ ना, द ग्राफ शोड, हाँ, सिग्निफिकेंट इंक्रीज। अब देयर वाज yes. कंसिडरेबल ग्रोथ, तो आप देख रहे हैं वही फार्मूलाज है ना, स्ट्रक्चर्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको, अब शोड स्पेशल वर्ब है,
तो हमने क्या लिखना है? एडजेक्टिव प्लस नाउन. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो noun, verb is a noun, can you people can use that as well. An increase noun, decrease, etc. So you do have that in your book. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ adjectives है. तो adjectives आप लोगों को पता है कि adjective is without ly and then uh, adverb is with ly. For example, sharp rise. Can I say sharply rise? No. No, because sharply we don't use with a noun. Clear? We use an adjective. So this is how dramatic rise, etc. You people can use them. अब यहां पे देखिए ड्रामेटिक, ड्रामेटिकली. देयर वॉज अ ड्रामेटिक राइज. मैं ड्रामेटिकली राइज क्यों नहीं कहता? Because rise is the noun. Excellent, because rise is noun and we need an adjective. And then can you Yeah. see sales fell sharply. तो मैंने यहाँ पे sharply क्यों लिखा, sharp क्यों नहीं लिखा? Adverb and verb. Verb. Excellent, because we have studied word structure. And can you see there was structure? तो जितने भी there was structure है तो हमने हमने उस वहां पे क्या लिखना है? एडजेक्टिव प्लस नाउन. और जो वर्ड स्ट्रक्चर है उसमें हमने वर्ब प्लस एडवर्ब. अच्छा, ये तो आप लोग मतलब वहां से पढ़ सकते हैं. ऑल दीज वर्ड्स आर अवेलेबल इन योर बुक. फिर हमारे पास जो मैंने कहा था अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स, तो अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स को आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं. ठीक है? जैसे मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली, वेरी, डबल डबल टिक है कि ये बहुत फॉर्मल है. ठीक है? कि ये इस्तेमाल किया करे अप्रोक्सीमेटली. तो ये बहुत बेहतरीन वर्ड है. तो फिर रफली सेमी फॉर्मल है. ठीक है? वन टिक. अबाउट बेसिक है. नियरली सेमी फॉर्मल है. अराउंड बिल्कुल बेसिक है. जस्ट ओवर फॉर्मल है. ठीक है? जस्ट अंडर फॉर्मल है. तो जहां पे मैंने डबल डबल टिक किया है तो ये आप लोग, इसका मतलब ये है कि आप लोग इस्तेमाल ये वाले करें, जस्ट अंडर एक्सेट्रा. फिर आपके पास वहां पे कुछ कंट्रास्ट कंट्रास्ट होंगे ना हमारे पास. तो कंट्रास्ट के लिए आप कोशिश करें कि क्या इस्तेमाल के, वेयर इज, वाइल, इन कंट्रास्ट. ऑन द अदर हैंड ना इस्तेमाल करें. ऑन द अदर हैंड की जरूरत नहीं है. ठीक है? आप ये तीनों इस्तेमाल किया करें. और यह हावेवर इस्तेमाल करें फोर्थ. फॉर कंट्रास्ट आइडिया वी विल शो कंट्रास्ट बाय कंपैरिजन अनलाइक क्लियर. So you can use this because these words are available. Then for similarities you can use these words. And these words are very important. Sometimes for overtaking, clear, or we can say surpassed के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. ये इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल वन ग्राफ इट गोज दिस, लेकिन ये शुरू में ये था, ये अब नीचे आया. तो कैन यू सी दिस पॉइंट? यहाँ पे जहां पे मतलब ये इसने एक्सीड कर दिया. कैन यू सी? फॉर एग्जाम्पल ये फिश है और ये पिज्जा है. तो पिज्जा ने एक्सीड कर दिया. किस चीज को एक्सीड किया? फिश को एक्सीड किया. कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे. तो आप वैल्यू भी लिख सकते हैं कि कौन से वैल्यू पे और कौन से डेट को. यहाँ पे डेट है 2000 है फॉर एग्जाम्पल. So we can say the consumption of pizza exceeded. तो exceed के लिए क्या होगा? Exceeded. What exceeded? Exceeded fish. कब? In 2002. At कौन से फिगर क्या है? कौन से वैल्यू पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल 80 है. 88 अप्रोक्सीमेटली 80%. और आपके पास मतलब अगर दो है तो आप ओवरटुक लिख सकते हैं. स्ट्रीमिंग ओवरटुक क्लियर. और सरपास्ट लिखते. चाइना हैड सरपास्ड द यूएसए, मतलब इसे क्रॉस कर गए, एक्सीड कर दिया. आउट क्लियर, वी कैन से आउट पेस्ट कर दिया. तो मतलब दीज आर द वर्ड्स यू पीपल कैन यूज. What means the X and Y here? सॉरी? X and Y, or just like X, overtook, and Y. अच्छा, एक्स एक्स का मतलब क्या है? मतलब वेन वैल्यू. जैसे मतलब हमारे पास है स्ट्रीमिंग, ये वैल्यू है ना, एक्स है. ओवरटुक डाउनलोड्स, टू वैल्यूज हुए. जैसे चाइना है तो चाइना एक्स है. यूएसए क्या हुआ? वाई है. मतलब चाइना मतलब सरपास कर गए ना. कि चाइना मतलब ये इन्हें क्रॉस कर गए. किसे क्रॉस कर गए? यूएस को. तो एक्स सरपास वाई. तो मतलब जो दो वैल्यूज होंगे, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज को अगर क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स को वाई पे, मतलब ये दीज आर द नेम्स ऑफ व्हाट सब्जेक्ट्स. क्लियर है? अच्छा, फिर देन जो वर्ब्स हमने लिखे थे इंट्रोडक्शन में, यू विल फाइंड दैट इन योर बुक. अब हमारे किस चीज की तरफ? वी वांट टू कम टूवर्ड्स योर लाइन ग्राफ. तो प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेंगे और उससे प्रैक्टिकल एग्जांपल को हमने क्या लिखना है उसी हम लिखना है. एंड देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट. लेट मी ओपन अ ग्राफ. Sir, can I ask one question now? या, यस. Sir, one thing is more distracted me या. about
that we studied that we don't need the data or figure in the overview paragraph. Hmm. But I saw the most examples in the book that in the book there is some years also and some data. I found it No, in the never book. use, never use. Okay, so don't follow the book. My book, Yes, sir. which graph you have used that? A lot of graphs, most examples they're used No, don't is use data. that, okay? Don't Okay. use, don't use that. Let me show you. Let me check it out. So this overview paragraph, I don't have any data. इसमें देखिए, इसमें तो कोई डेटा नहीं है. हेलो, हेलो. Yes, sir. In the bar chart. अच्छा, इसमें तो नहीं है. एंड देन इसमें भी नहीं है. कैन यू सी? नो डेटा. That in the line graph, I ओके, checked all examples, but in the bar chart, ओके. they लेट used मी. more than 2,000. Can you 59 page? 59. ओके. So overview paragraph. This is the overview we don't have. Sir, by 2,000. Okay, okay. Don't use it. Okay. Okay, Nay, got this it. 2000. Okay. We just targeted a single year that look and became the most popular mode by 2000. We have referred to a specific part. We will study that. I will give you the example, then you will know about that. Okay. That why I have used 2000 here. Okay. Yeah, I will guide you about that. But never use that. Okay. Don't use. Okay, sir. Now, let's take example for this. Yesterday, if you remember, we talked two things, Claire. Previously in previous lectures, we studied about the introduction, then overview, and today we want to talk about main body paragraph or line graph. सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि हमारे पास कितने कैटेगरीज है. अब देखिए, कैटेगरीज हमारे पास तीन है, लेकिन पैराग्राफ, मेन बॉडी पैराग्राफ हमने पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, तो दो पैराग्राफ्स हमने लिखना है. तो इसका मतलब ये है कि जो सिमिलर, मतलब एक ट्रेंड में जाने वाले हो, सेम ट्रेंड, सेम ट्रेंड वन वी पुट इन वन पैराग्राफ एंड द ऑपोजिट वी विल पुट इन अनदर वन. अब देखिए हमारे पास ये हैमबर्गर ऊपर जा रहा है एंड पिज्जा, लेकिन ये हमारे पास ऑपोजिट है. तो एक पैराग्राफ हमने इस पे लिखना है एंड द सेकंड पैराग्राफ वी विल राइट ऑन दीज टू. इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हमने एक पैराग्राफ में लिखना है और जो ऑपोजिट वन है वी विल राइट अनदर पैराग्राफ. समझ रहे? अब आप लोगों ने क्या करना है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं जब लाइन ग्राफ हो, तो लाइन ग्राफ को आप लोगों ने ट्रेंड की बुनियाद पे लिखना है. किस चीज की बुनियाद पे लिखे? ट्रेंड. मतलब if you want to write down a line graph, so try to follow proper trend. अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ट्रेंड से मेरा मतलब क्या है. डोंट राइट, क्लियर, डोंट राइट बेस्ड ऑन टाइमलाइन. टाइमलाइन की बुनियाद पे ना रखे. मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ. एक हमारे पास है ट्रेंड, एक हमारे पास है टाइमलाइन. अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि दे स्टार्ट राइटिंग क्लियर लाइन ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन. तो टाइमलाइन पे ना लेकर करे, ट्रेंड की बुनियाद पे रखे. ट्रेंड का मतलब ये है, देखे, चेंजेस. अब यहाँ पे ये शुरू है कि नहीं, यहाँ पे खत्म हुआ है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है कि नहीं. क्योंकि यहाँ पे नीचे आया, फिर इसने इट शोज व्हाट अपवर्ड. यहाँ पे नीचे ऊपर. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, अगेन वी हैव इट ड्रॉप्स. तो ट्रेंड दोबारा से यहाँ पे चेंज हुआ. यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. यहाँ पर ट्रेंड अप हुआ है मामूली यहाँ पे. तो हमारे पास थ्री ट्रेंड्स है इसमें. कितने ट्रेंड्स है? थ्री. अब यहाँ पे देखें, नंबर वन, फिर हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन है और फिर यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी है. कैन यू सी? स्टेबिलिटीज. तो मतलब हम एक ही जुमले में ये लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे टाइम को नहीं फॉलो करना, मतलब टाइम तो हम मेंशन करेंगे लेकिन इस लिहाज से, इस साल से लेकर 5 इयर्स, फिर यहाँ पे 5 इयर्स, लेकिन फिर यहाँ पे 1985 से लेकर 2000 तक, ये टाइम पीरियड हमने यहाँ पे लिखना है. अब ईयर बाय ईयर हम नहीं लिख सकते. अगर इफ यू कीप राइटिंग ईयर बाय ईयर, तो एक तो हमें मतलब लिखना ठीक नहीं होगा, दूसरी बात ये कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कीप राइटिंग इट. तो हमेशा आप लोगों ने किस चीज की बुनियाद पे लिखना है? ट्रेंड की बुनियाद पे. अब वन पैराग्राफ आई वांट टू राइट ऑन द कंजम्पशन ऑफ व्हाट, कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स. तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. व्हाट हैपन हियर?
इट हैज बीन स्टार्टेड। तो आप लोग ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में। देखिए, स्टार्टेड एट, प्रपोजिशन होगा स्टार्टेड एट, फिनिश्ड एट, स्टूड एट, फॉर एग्जाम्पल एंडेड एट। तो इनके पास आपने प्रपोजिशन एट लगाना है इन अल्फाज के साथ, इन वर्ड्स के साथ, ठीक है। अब जहां पर भी आप लोग, व्हेन यू स्टार्ट वांट टू स्टार्ट क्लियर, सो यू कैन स्टार्ट इट। यहां पे हम लिखना चाहते हैं इस पे, तो क्या लिखेंगे आप मुझे बताएं। मैं ये लिख सकता हूं ना कि पिज्जा, अगर आप पिज्जा को देखें यहाँ पे, सॉरी फिश एंड चिप्स को, तो फिश एंड चिप्स स्टार्टेड, वैल्यू क्या है 100, स्टार्टेड एट 100, कब, इन 1975। 1975 में ये स्टार्ट हुआ था क्लियर, इट स्टार्टेड 800 टाइम्स अ ईयर। और अगर यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, कंपैरिजन कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे क्लियरली लिखा है कि समराइज इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग मेक फीचर्स एंड कंपेयर वी आर रेलेवेंट। जहां पे हो सके वहां पे करे। तो शुरू में मुझे लग रहा है कि 1975 में ये 100 पे तो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये इन दोनों से बहुत ज्यादा, काफी मकदार में मतलब लोग पसंद किया करते थे। सो कैन आई से दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ये तो मोस्ट पॉपुलर है ना यहाँ पे, इन दिस केस दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन। ये काफी ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे, एम आई राइट। तो हमारे पास दो Yes. जुमले आए। जुमला नंबर वन हमारे पास यहां पे आ सकता है, लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दिस। In 1975, the most popular fast food with Australian teenager was fish and chips, being eaten 100 times a year. ऐसे ही है, ठीक है। This was far higher than pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. तो हमने क्या लिखा, वी कैन स्टार्ट राइटिंग। यहाँ पे ये मॉडल आंसर हमने देखा। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स स्टार्टेड एट 100 टाइम्स पर ईयर, कब, इन 1975, which was the most popular fast food among the teenagers of Australia, clear, in 1975। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया, कैन यू सी है, Decrease. डिक्रीज। Decrease. तो अब क्या मैं ये लिख सकता हूं, मैं अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकता हूं ना, जो भी स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करें, यू कैन राइट देयर वॉज अ स्लाइट, क्लियर, देयर वॉज अ स्लाइट डिक्रीज। डिक्रीज के डिक्रीज, Decrease. क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लाइट है, क्योंकि नाउन, नाउ एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, देयर वाज अ स्लाइट डिक्रीज। अब मुझे बताए, मैं यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस है, आई हैव गॉट टू चांसेस चॉइसेस आफ्टर फॉर द वर्ब। तो मैं, मेरे पास दो चांसेस है। दो चांसेस में क्या मतलब, मेरा क्या है, मेरा मतलब ये है कि मैं आई कैन यूज आइदर प्रपोजिशन बाय और टू। तो बाय और टू दोनों में इस्तेमाल कर सकता हूं ना। बाय मतलब, अब देखिए Yes. यहाँ पे 100 था, अब ये कितने तक पहुंच चुका है, तकरीबन 83, ठीक है ना, 83 85 तक पहुंच चुका है, ऐसे ही है। यस सर। Yes. तो मतलब अगर डिफरेंस हो तो कितना आया, 15 आया, कितना आया, 15 टाइम्स। लेकिन फाइनल वैल्यू क्या है, 85। तो अगर मैंने डिफरेंस लिखना है इन दोनों फिगर्स के दरमियान, तो मैं बाय लिखूंगा, और अगर मैंने फाइनल वैल्यू लिखना है तो फिर क्या, टू। True. सपोज मैं यहां पे लिखना चाहता हूं द सेम, क्लियर, okay, let me clear it now again. There was a slight decrease. Clear? Decrease by 15 times. ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, दोबारा से मतलब इंक्रीज आया कि नहीं। अब देखिए इसमें, जब जहां पर भी आप लोग के पास, जहां पर भी आपका ट्रेंड चेंज हो रहा हो, जहां पर ट्रेंड चेंज हो जाए, जैसे यहां पे ट्रेंड अब नीचे आया तो मैंने मेंशन, अब ये दोबारा चेंज हो रहा है तो मैंने ये जरूर मेंशन करना है, आई हैव टू मेंशन इट। तो यहां पे मतलब अपार्ट फ्रॉम अ स्लाइट इंक्रीज, स्लाइट इंक्रीज आया फ्रॉम 1980 टू 1985। अब इंक्रीज देखिए कितना इंक्रीज आया, यहां पे 85 था तो यहां पे 95 तक पहुंचा, तो 10 टाइम्स इंक्रीज आया कि नहीं। तो यू कैन राइट 10 टाइम्स इंक्रीज। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, यहां तक, यहां तक। इसमें अगर हम मेंशन करें तो हमने एक ही जुमले में ये खत्म करना है, क्योंकि मेरे वर्ड्स काफी ज्यादा होंगे फिर। तो मैं क्या लिखूं, क्लियर,
हाउ एवर, मतलब यहां पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, देन आई कैन से, क्योंकि ऑपोजिट हो रहा है तो मैं लिखूंगा हाउ एवर। जहां पर आपका मतलब वो ऑपोजिट चल रहा है तो ऑपोजिट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हाउ एवर। हाउ एवर द ग्राफ, द ग्राफ एक्सपीरियंस्ड। तो देखिए मैंने क्या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ना, द ग्राफ एक्सपीरियंस्ड। क्या एक्सपीरियंस्ड कर दिया ग्राफ ने, द ग्राफ एक्सपीरियंस्ड अ स्टेडी, अ स्टेडी बट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अब मुझे बताइए, ये एक्सपीरियंस मतलब वर्ब आया तो मैंने क्या इस्तेमाल करना है, एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है कि नहीं। Yes. तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब नाउन हुआ, डिक्लाइन क्या हुआ यहाँ पे नाउन। तो मैंने लिख दिया कि स्टडी, एक तो आराम आराम से है लेकिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि स्टडी बट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। हाँ, डिक्लाइन, कब से कब तक ये डिक्लाइन आया, बिटवीन बिटवीन 1985 एंड 2000, आया कि नहीं। एंड हिट अ लो, क्लियर, हिट अ लो पॉइंट ऑफ, हिट अ लो ऑफ। तो यहां पे देखिए बिल्कुल लो पॉइंट पे आया कि नहीं। Yeah, हेलो, आप 40. लोग मेरे साथ है सबके नहीं, जिंदा है आप लोग। Yes, यस yes. सर। गुड। एंड हिट अ लो, हिट अ लो ऑफ, तो ये अब देखिए फूटी है कि नहीं, हमारे पास फूडी है, दैट्स फूडी। Just below. तो मतलब क्या लिखो, जस्ट बिलो फूडी, हिट अ लो, क्लियर, ऑफ जस्ट बिलो फूडी टाइम्स पर ईयर। क्लियर हुआ कि नहीं। तो वही फार्मूलाज हमने लगाने हैं, वही स्ट्रक्चर्स हमने इस्तेमाल करने, एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड वन पार्ट हियर। लेट्स टेक वन ऑफ द मॉडल आंसर्स फॉर दिस नाउ। अब ये रीड सर करें। और इसके लास्ट में हम लिख सकते हैं कि लाइक द कंजम्पशन ऑफ पिज़्ज़ा अमोंग द टीनएजर शोज फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट द टाइम पीरियड। फ्लक्चुएशन कहाँ पे जिस मैंने, तरह जरूरत नहीं है उसकी ना, बस ये खत्म कर दिया आपने ना, सर वेरिएशन आई है ना ग्राफ में, तो अच्छा तो आपने बस खत्म कर दिया ना, जरूरत नहीं है उस चीज की तो। ओके। One मतलब cent. ज्यादा फ्लक्चुएशंस तो इसमें नहीं है ना, बिल्कुल 1985 ना तो 2000 por यो लाइन किरा रवान दे देखो, फ्लक्चुएशन नहीं था। फ्लक्चुएशन खुदा ही बरा लाइन दी ओके थी गिडेर, यहाँ पे तो इतने ज्यादा ओके सर, बस फ्लक्चुएशन यही नहीं मैं है। पूछ रही थी। हाँ ज्यादा नहीं है तो डोंट राइट, दिस वाज फार हायर देन दे। ओके अब देखिए यहाँ पे, हाउएवर अपार्ट फ्रॉम अ ब्रीफ राइज अगेन फ्रॉम दिस टू दिस, द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर 25-year टाइम स्केल टू फिनिश एट जस्ट 40, जस्ट अंडर 40। तो वही चीज यहाँ पे हमने ये लिखा है, तो मैंने वहां पे स्ट्रक्चर थोड़े चेंज कर दिए कि नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसी पैराग्राफ को आप लोगों ने क्या करना है, आप खुद ही लिखेंगे, यू आर राइट बाय योर ओन राइट नाउ। अब दूसरे पैराग्राफ को अगर आप देखें, इन शार्प कंट्रास्ट टू दिस, इन शार्प कंट्रास्ट क्योंकि ऑपोजिट है ना, सो वी कैन से इन शार्प कंट्रास्ट टू दिस, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels। तो दोनों हायर लेवल पे, पिज्जा कंजम्पशन increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990। अब देखिए यहां पे मैंने क्या कहा कि ये ओवरटुक है, पिज्जा कंजप्शन का यहाँ पे ओवरटुक हुआ है ना, कब ओवरटुक है, 1990। एंड देन इसके बाद इसने क्या शो कर दिया, लेवल्ड ऑफ है, लेवल्ड ऑफ है, देन वी कैन मेंशन क्वाइट इजीली, देन लेवल्ड ऑफ। तो लेवल्ड ऑफ कितने पे है, लेवल्ड ऑफ इसका जो है, कैन यू सी हेयर नाउ, फिनिश एंड देन लेवल्ड ऑफ फ्रॉम 1995 टू 2000। अब यहां पे मैंने वैल्यू नहीं डाला, अगर आपसे कभी भी वैल्यू रह जाए तो आप लोगों ने क्या करना, आखिर में जस्ट कामा लगा दे, कामा, कामा के बाद आप एट लगा दे, 80, और उसके भी यहां पे वैल्यू लगा दे, फॉर एग्जांपल एट, एट अबाउट फॉर एग्जांपल 40 टाइम्स, और फुल स्टॉप लगा दे। जब भी आपसे वैल्यू रह जाए तो आखिर में आप जुमले के आखिर में कामा लगा दे, और उसके बाद सिर्फ आपने प्रपोजिशन एट लगाना है, उसके बाद आपने वैल्यू लगाई यहां पे एट 30%, बस खत्म। तब जैसे यहां पे मैंने वैल्यू नहीं लगाया ना, आई हैवंट यूज एनी वैल्यू हेयर इन दिस केस, यहां पे वैल्यू मुझे नहीं, मैंने नहीं, तो यहां पे मैं कामा लगा दूंगा और अब वैल्यू देखूंगा कि क्या वैल्यू है वहां पर। अब देखिए यहां पे मैंने क्या कहा, ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन ऑफ फिश इन, कंजम्पशन ऑफ पिज्जा इंक्रीज्ड, यहां पे ये क्या इंक्रीज हो रहा है ना,
increased gradually, और उस टाइम तक ये इंक्रीज हो रहा है until it surpassed। यहां पे क्या कर रहा है? ओवरटुक। किस चीज को ओवरटुक कर दिया इसने? अब फिश एंड चिप्स को, रेड को कर दिया ना। और कौन सी ईयर में? इन 1990। एंड देन, और फिर इसके बाद क्या हुआ? देन इट लेवल्ड ऑफ फ्रॉम 1995 टू 2000। और अब कौन से ये वैल्यू क्या है? कामा 8। अब इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 8 अप्रोक्सीमेटली 85 टाइम्स यहां पे खत्म कर दिया। अब हमारा ये वाला क्लियर हुआ, क्योंकि अच्छा, जो पैराग्राफ एग्जामिनर आपको दो कैटेगरीज ऐसे दे के मतलब सेम हो, एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो उसमें इतने ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जैसे इसमें भी चेंजेस नहीं है, इसमें भी चेंजेस नहीं है, लेकिन ये रेड वाला देखिए एक पैराग्राफ है तो इसमें थोड़ा ज्यादा चेंजेस होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा वाला आया? द नेक्स्ट वन। द बिगेस्ट राइज वॉज सीन इन हैमबर्गर्स इज द ओकेजन दे वर ईटन इंक्रीज शार्पली थ्रू आउट 1970s। अब 1970s में देखें तो ये काफी ज्यादा, ये खत्म कर रहे हैं भाई। देन वी आर गोइंग टू टेक द break, okay? Then if you just look at this one, the 19 clear, the other one, the consumption of hamburgers, it increased sharply. When it increased sharply, यहां से लेकर यहां तक 1970s एंड 1980s। 70s का मतलब क्या है कि 71 टू 79 एंड 81 टू 89। तो यहां पे काफी तेजी से शार्प आया कि नहीं? बहुत तेजी से मतलब ये बढ़ गया है, ठीक है। और आखिर में इसने मतलब कंक्लूड कर दिया। कहां पे कंक्लूड किया हुआ है? जहां से फिश एंड चिप्स ने स्टार्ट लिया था वहां पे आखिर में इसने कंक्लूड कर दिया। सो वी कैन राइट द बिगेस्ट राइज वाज सीन इन दिस शार्पली थ्रू द दिस एंड एक्सीडिंग दैट ऑफ फिश एंड चिप्स इन 1985। 1985 पे अगर आप देख ले यहां पे तो इसने एक्सीड किया हुआ है। दे हैव एक्सीडेड। तो हम बिल्कुल फिनिश करना चाहते हैं। देन वी कैन से दैट इट फिनिश्ड एट द सेम लेवल दैट फिश एंड चिप्स began with consumption 800 times a year. So this is the graph where you can write on it one paragraph on one another paragraph। तो इसमें आप लोग कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते? 3 स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक को एक बार इस्तेमाल किया तो दोबारा चेंज किया करें आप उसे। एनी क्वेश्चंस? सर ये ग्राफ बुक में है? ये सारी ये लाइन ग्राफ की काफी ज्यादा है मैम वहां पर। यू विल फाइंड मेनी ओके, लाइन ग्राफ्स। ऑलराइट सर, थैंक यू। बहुत ज्यादा ग्राफ्स है लाइन ग्राफ के। वहां पे मॉडल आंसर्स देखिए, उस पे आप लिखते जाए। और आप प्लीज आज अब बेटे इसी से पिक्चर ले ले। यू कैन टेक पिक्चर। आप खुद इस पे लेके मुझे शेयर कर दे, ठीक है? ईमेल कर दे मुझे ओके सर। इसका। आप लोग पिक्चर ले सर ले। यस प्लीज। सर कमिंग द फिश एंड चिप्स नस्तात वानलो hamburger नॉल सर क्या मसले जुड़ी संगा पुइनिशुमा। सर कमिंग द फिश एंड चिप्स नस्तात वानलो कना अवले खबर हम पता करता हूं और hamburger नस्तात वाली सर मसले क्या कही ब्रदर जिस्ता पे खबर बिल्कुल हम न पोएगा मां। लग मोबाइल देने से का वक्त लग दोबारा हुए। Sir, he is saying that, for example, सरदा सिवे hamburger. में मुंग स्टार्ट द फिश एंड चिप्स नालू का ठीक दिन शो। स्टार्ट वानलो और हाँ hamburger हाँ हाँ, नस्तात ओके वाली सर ओके। मसला भी जुड़ेगी सर اوس ټیک شو کنه ته مخکې دا بس چلو چې ستا आवाज داسې دغه اوس دې ټیک کو کنه ګور دا نوټ څومره کلیر راځي دغه شانت لګ د आवाज ټیک نه نه هیڅ مسله نشته. فرست اف اول یو کین رائټ اون پیزا اند همبرګرز. داس په قران کې خو نه دی راغلی ښا. اوکې یو کین ایدر رائټ پیزا اند همبرګرز او یو کین رائټ فش اند چپس چې کوم دی خوخ یې غینه ولیکا. ټیک شو. اول ته په پیزا اند همبرګرز ولیکا. any other questions؟ हेलो। जी जी देखिए सर हर यो पॉइंट डिस्कस को लका मतलब द फिश एंड चिप्स सिटी करना 1975 टू 1980 तासो डिस्कस कर बिया 1985 दगा शांति हैमबर्गर सिटी 1975 टू 1985 तासो डिस्कस का मतलब हर यो पॉइंट कम से डिक्रीज और इंक्रीज रहा का डिस्कस को ब्रदर यस ما ته چې ټایم نه دی مونږ په ټرند کو دا ټرند دی لاندې شو بره شو. کین یو سی لاندې شو بره شو. دا دې نه شروع شوی د ټول انکریز کې روان دی. خو دلته کې یو خبر پکې ده دلته کې انټرسیکشن شوی دی. دلته کې سرپاس شوی او ټوک کړی دی په دې 2 پوینټ دا منشن کول مست دی. بیا دې نه دا ویلیو شو کنده دلته لیول اف شوی دا منشن کول مست دی بیا. हाँ जी او بل سر د همبرګر سیدی نو د کوم لیول اپ ولا خبره کول دي ولي ځکه کا چې دا ضروری ده کوم کنه دا دیزی پانه دیزی پور ته 100%. 1995 نه تر yes 2000 yes پورې دغه ده yes you can ډبل write دی it yes
ओके सर, थैंक यू। कैलिक्यूली कवर के। एनी अदर सर क्वेश्चन? इसके अलावा जो बॉडी पैराग्राफ के लिए कोई प्रॉपर फार्मूलाज नहीं है, लाइक 3 फार्मूलाज तो हम यूज करेंगे पर वो प्रॉपर इसमें नहीं यूज होते, यूज होते लाइक क्यों नहीं यूज एग्जैक्ट होते मैम? यूज होते क्यों नहीं होते? यूनिट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वर्ड। क्यों नहीं यूज होते? आप यहाँ पे तो सारे अप्रोक्सीमेशन पे चल रहा है। ये भी अप्रोक्सीमेशन है, ये भी अप्रोक्सीमेशन है, ये भी हाँ, अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पर ये हर एक जगह पे अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। अच्छा, और एक्सीडेड का वर्ड्स का भी यूज नहीं हुआ था ना, तो अच्छा, इस वजह से कोई अगर फार्मूला है तो। एक्सीडेड तो अभी आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे ना। यस यस, इस्तेमाल तो करना है बट फार्मूलाज में नहीं था ना। अच्छा नहीं, एक्स और वाई में मैंने दिया था ना मैम, जो आपने पूछा कि एक्स और वाई का क्या मतलब है, तो इसमें एक्स क्या है? एक्स हमारे पास ये पिज्जा है। वाई क्या है? फिश एंड चिप्स। या तो एक्स एंड वाई का है ना, कि फॉर एग्जांपल यू कैन से पिज्जा एक्सीडेड, द कंजम्पशन ऑफ पिज्जा एक्सीडेड क्लियर व्हाट? फिश एंड चिप्स एंड कप 1990। ओके, हाँ, गॉट तो इट। ये फार्मूला हुआ ना उसका, एक्स और वाई का, कि द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स एक्सीडेड, एक्सीडेड एंड कौन से ईयर में? 1990। अब अच्छा, मैंने एक्स एंड वाई आखिर में ये अगर वैल्यू लिखना है तो क्या, एग्जैक्ट। कामा लगा दो, एट। एट लगा दो, ठीक है। एट, एट जस्ट क्लियर, और नियरली, एट नियरली और रफली क्या है, जो भी है, तो मतलब रफली क्या है, तकरीबन 65%, 65 टाइम्स अ ईयर। ठीक है। एक्स एंड वाई फार्मूला है। सॉरी, एक्स एंड वाई, यस एक्स एंड फार्मूला वाई वन, यस ना, एक्स का मतलब क्या है? जो कैटेगरी है। कंजम्पशन ऑन फिश, या एक्स का मतलब कैटेगरी फिश है, पिज्जा है, एंड वाई का मतलब क्या है? दूसरा। लेकिन जो ओके, जिसे क्रॉस कर गए उस वो वाई में आते हैं, जो क्रॉस करने वाला है वो एक्स में आता है। ठीक हो गया। या एनी अदर थैंक्स। क्वेश्चंस? यू वेलकम। सो इस ग्राफ को अभी आप लोग टाइप करें, मुझे ईमेल कर दे, ठीक प्लीज, आई विल चेक इट आउट। अभी आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, और फिर चैट जीपीटी पे आप लोगों ने ये देखना है कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। सो विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। हाँ, तो टुमारो आप एक मॉक एग्जाम परफॉर्म करें, मंडे को इंशाल्लाह और बाकी क्लासेस लेंगे। और अभी मैंने वीकेंड पे सारी वीडियोस अपलोड करने हैं यूट्यूब पे। सी यू इंशाल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर।